Hello, good morning students. Today in coordinate geometry, it is the turn of section formula, new concept and used mostly in exercise 8.2. Okay, now no distance formula will be so much useful in this exercise. Okay, so first of all understand what is the section formula. Okay, section means what? To sect, SECT, to sect means to divide. Section means division. So division formula. But what type of division? Not that of multiplication division. Division means if any 2 points are there. Okay, if suppose that are A and B. If I join both of them, then there will be one line segment. Suppose any third point, dividing this line segment AB in particular ratio. Suppose into any 2:3 or whatever may be. Ratio is denoted by this way. Okay. Suppose in 2:3. So what should be coordinates of P? That we can find. Okay, so it is found by section formula. So what is the case? First of all understand. Again I explaining. Whenever 2 points are given and third point is placed in between of them, then in what ratio it is dividing, that is given. Both points are also given. Then we can find that point's location. Location means their coordinates, its coordinates. Okay, x and y coordinate. Suppose this point is x1, y1. This point is x2, y2. And what we are going to find, that point's coordinates are x, y. And let this ratio is m:n. These are the symbol. Okay, quite simple because I have just given you example. Now if you talking theoretically, then no any particular value we can take. We have to talk in unknown term. Okay, so let this ratio will be m:n. M:2 means you understand. Suppose it is 2:3, then you can say 2 parts here, 3 parts here. If it is 2:5 or 1:5, then 1 part is here, 5 parts are here. Okay, so it is the ratio of AP is to PP, otherwise AP upon PP. Okay, so you can find xy. Now what is that formula? So that formula of finding x coordinate is mx2 plus nx1 m plus n, and y equal to my2 plus ny1 m plus n. Okay, both are same, only here instead of x coordinate y coordinates are given. Okay, now this point you have to write in tableau. We have written so many points. Now continue from that. Okay, so this is the heading is section formula. Okay, matter is given here, so I am not writing statement. Okay, understood? Now, it is not necessary that every time xy is not given, everything else is given. Anything missing you can find. Obviously, if A and B both are given, ratio also given, then you can find both coordinates of B also. Same way, if both these are given and A is not given, then you can find A also. Means out of 3, if any 2 points are given and ratio given, then that missing point you can find. Otherwise, one coordinate missing from any one point and second coordinate missing from any second point, then also means anyway 2 missing variable you can find. Why? 2 formulas are there. From 2 formula we can decide 2 variable. Even all 3 points are given, we can find ratio also, because ratio is after all one thing, m by n. M and n are not different values. Okay,
So even all points are given, you can find ratio also. So anyway, this formula can be used. Okay. Now this is our main point. Now its sub point is, it is actually from this one particular case. So special case of section formula. Section means division. Here P divide the line segment AB in two parts. That's why. You can find midpoint now. Okay. So now take new point also, no problem. This is suppose new point. Suppose AB are here. And P is actually at midpoint, not anywhere, exactly at middle position. Then obviously these symbols remain same only. So no need to give here ratio. Why? Ratio is 1:1. Midpoint means what? Same part this side and same part this side. So its ratio can be say 1:1. Okay. So if you place here 1 means M and N 1 then obviously what will happen? X2 plus X1 divided by 1 plus 1 2. Y2 plus Y1 divided by 1 plus 1 2. Okay. So midpoint formula even you can find orally also. Midpoint. Okay. So therefore here P is, this is clear that P is midpoint. Why? Both sides are equal. Okay. So here write in bracket midpoint point. But actually it is derived from section point. Okay. So x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. Okay. Now one more concept will be used here. That is our next point. If you continuously give number in your textbook, then you can give number also for start. In diagonal one property is there. And that is diagonal bisect each other. So what is meaning by diagonal bisect each other? Both midpoints will be equal in any parallelogram, either only parallelogram, either otherwise special case such as rectangle, square or rhombus. Okay. So first of all write these 2 points, otherwise take screenshot right now. Okay. Because these are the points you have to write in fair book. Okay. fair book में लिखना पहले लिखते थे ऐसे important notes, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में एक तो पॉइंट है ना, एक आध पॉइंट इस साइड बाकी है अभी के लिए, मतलब 8.2 के लिए, वो मैं बाद में लिख पाऊंगा लास्ट वर्ड। ओके, सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। Diagonal bisect each other in parallel. पैरेललोग्राम का मतलब आपको पता है, ओनली पैरेललोग्राम या तो इसका स्पेशल केस रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, व्हाटएवर। सो कैन आई से midpoint of one diagonal is equal to midpoint of other diagonal. Why? Diagonal bisect means what? दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है, एक दूसरे को
टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दूसरे पहले को, मतलब मिड पॉइंट सेम ही कॉमन है। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सेकंड डायगोनल। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज ऐसे कोई ABCD है हमारे पास और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका सपोज x3 y3 है और इसका x4 y4 है। तो मैं कह सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूं कि इन पैरेललोग्राम ABCD, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर मैंने जनरल बात की है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट ऐसे कंपेयर करो, सीधा एक एक नहीं, सीधा पूरा पॉइंट ऐसे कंपेयर करो। तो हियर आई कैन राइट मिड पॉइंट की फॉर्मूला अभी हमने लिखी है कि दोनों x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2 मींस एवरेज, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ऐसे यहां पर BD, सो एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। बाद में आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करोगे, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट। ओके, वो आगे की बात है, सॉल्व कैसे करें। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी हम यूज करने जा रहे हैं 8.2 में। ओके, वो ये तीनों के बेस पर है। ओके, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या तो पोस्ट करके लिख लो। Sorry, 7.2. By mistake, I was telling 8.2, but 7.2. Now look at first question. Again, I just quickly revise it. This is the property of any parallelogram. It means this. Both statements say same thing. Okay? कि बाइसेक्ट करना है, इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, कॉमन है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने समझा दिया। ऐसी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी, जस्ट कॉन्सेप्ट याद है। ओके, अभी 7.2 का फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट मैंने जो पहला पॉइंट में आपको बोला ना, ऐसे फिगर भी हम ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट बुक में कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, इसका कोई मार्क भी नहीं है, लेकिन हम करेंगे आसानी से सम करने के लिए। ओके, सो नाउ आई रिमूव दिस वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.2। तो ये तीनों पॉइंट आपको फेसबुक में लिखना है। ये होमवर्क नहीं है, मुझे फोटोग्राफ लेके भेजना नहीं है, होमवर्क मिलेगा वो आप भेजो। नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। तो देखो 2 पॉइंट दिया गया, तीसरा पॉइंट मांग रहे हो लोग और पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जॉइंट मींस लाइन से। ओके, तो हमारी वही फिगर ये बार बार रिपीट होगी, AB। ओके, PB कहीं पर रखो, ये हमारी रफ फिगर है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली कहां रखें। तो ये तो हमारा फिक्स रहेगा, इसका सिंबल x1 y1 ही हम देंगे एवरी टाइम, इसका x2 y2 ही लेंगे, इसका xy ही लेंगे और यहां m/2 ही लिखेंगे। पहला पॉइंट पहले लिखना है, दूसरा पॉइंट दूसरे, अभी सारे लिख दो। -1,7, ओके, यहां 4, -3, ये क्वेश्चन मार्क, और ये है 2:3, 2:3। ओके, -1,7, 4, -3 नॉट गिवन, 2:3। सो एवरीथिंग क्लियर। तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m क्या है, n क्या है, क्या चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो हम ऐसे फिगर बनाएंगे। ओके, हमारे कन्वीनियंस के लिए, मार्क्स के लिए।
Now just write that formula and place our values. mx2 plus nx1 m plus n. Okay, so m2 3 2 3 x2 4 x1 minus 1 वहां से यहां आना है, याद रखना पहले x2 बाद में x1, तो क्या आएगा 4 2 8 3 1 3 लेकिन प्लस माइनस माइनस अपॉन 5 5 by 5 1. ओके, जस्ट प्रॉपरली वैल्यू प्लेस करो, सिंप्लीफाई करो. ऐसे यहां y इक्वल टू m by 2 प्लस n by 1 m प्लस n. तो अगेन m by 2 प्लस n by 1 m प्लस n. यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेली टर्म है, इनटू में नहीं. लिखो m n तो 2 3 2 3 है यहां की तरफ. y2 minus 3 y1 7. Okay, y2 y2. That's why figure is important. So कितने बने हो -6 plus 21 upon 5 15 upon 5 3. Okay, so that point is what they are asking. Find the coordinate of that point. Otherwise that point is, okay, so that point is what 1 comma 3. ऐसे नहीं आंसर देना, मिला के देना. Therefore that point is, otherwise coordinate of the points are 1 comma 3. ये हमारा पहला आंसर. ओके, ऐसा ही पॉइंट, सॉरी ऐसा ही सम, ये हमारा फर्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 1. ऐसा ही एग्जांपल 6 है, वो आप होमवर्क में करेंगे. ठीक से इसकी तरफ सीधा करोगे तो आप तो बोलेंगे इसका तो बहुत शॉर्ट हो गया, लेकिन कंफ्यूज हो गया. तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट की जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्टकट डेंजरस होते, पता है ना आपको. सो एग्जांपल 6 इसके जैसा है, वो होमवर्क किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने. ओके, समझ लो. और ऐसे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, या तो पॉज करके लिखते रहना. डायरेक्ट फेयरबुक में भी लिख सकते हो, फेयरवर्क सीधा फेयरबुक में लिख सकते हैं, होमवर्क होमवर्क. अभी हम सीधा जंप लगाते हैं नंबर 4 पर. नंबर 4, रीड करो क्या है बाबा. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 is divided by -1. मैंने पहले बोला था कि ऐसा नहीं कि एवरी टाइम यही फाइंड करना. ये सब दिया तो ये भी फाइंड कर सकते हैं, या तो यहां से बी की जगह ये और बी भी फाइंड कर सकते हैं. एनीथिंग विच इज मिसिंग वी कैन फाइंड. ओके, तो फिगर तो यही रहेगी, मैं ओनली वैल्यू बदल रहा हूं, फॉर्मूला भी यही रहेगी. ओके, ये आपने समझ लिया. एग्जांपल 6 होमवर्क में है वो. अभी मैं 4 ले रहा हूं. सारी बातें वो लिख लो. देखो पहले पॉइंट्स कौन से हैं, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मींस ये ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. हम कौन से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों. ये तो तीसरा पॉइंट है, याद रखना, मिक्सअप मत कर देना. तो पहले 2 पॉइंट है वो ये है -3, 10, 6, -8. -3, 10, 6, -8. ओके, और -1, 6 इसको दिया गया है, ये नहीं है, मतलब m/n. हमें फाइंड क्या करना है, m/n. और ये कुल मिला के एक ही बात है,
one variable only, not m and n separate. Okay. मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन इनफ है, दो इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? क्योंकि यहां कुल मिला के m by n वन थिंग ओनली मिसिंग, नॉट टू. सो यू कैन गो अहेड हियर और हियर, एनीवे दोनों में से कोई एक जगह करो, आंसर मिलेगा. ओके, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं. देखो, x माइनस 1. ओके, m n में ये है 6x2 x1 माइनस 3. तो क्या मिला? 6m माइनस 3m. इसको यहां ले लो, इसको यहां बुला लो. तो -1 से दोनों को इंटू करो तो -m माइनस n. ओके, मैंने वो पूरा बाइनोमियल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया. तो हमें m by n फाइंड करना है, तो कोई एक साइड m रखो, सामने n रखो, तो रेशियो बन जाए. तो मैं मान लो कि m को यहां रख देता हूं, 6m plus n. Now 3n comes here and minus n remains here. Okay, setting. So 2n equal to 7n. बस हमें m by n चाहिए, इसका मतलब ये. तो m by n ठीक से देखना, मैं m को यहाँ रख रहा हूँ, n यहाँ सेटिंग. तो 2 तो यहाँ था, 7 यहाँ, बस मिल गया. लेकिन लास्ट में हम स्टेटमेंट में आंसर देंगे इसके. जुलिया, फाइंड द रेशियो. देयरफॉर रेशियो इज 2:7. Otherwise, that point divide the given joint in the ratio 2:7. लंबा सा आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है, वैसे लिखो. लेकिन इनफ है कोई एक साइड. अब बोले सर हमने यहाँ वहां करना, करके देखो. देखो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ. 6m by 2 plus n by 1 m plus n. mn तो है y2 minus 8 y1 10. इसको यहाँ बुला लो. सो 6m plus 6n is equal to minus 8m plus 10. ओके, हाँ, m को मैं यहाँ बुला लेता हूँ क्योंकि प्लस बन जाए, और n को वहां ले लो. सो 14m इक्वल टू 4m. हमें क्या चाहिए? m by n. तो m को यहाँ था ही, n को यहाँ बुला लो. 4 तो यहाँ था ही, 14 को सामने भेज दो, बस 2/7. कोई भी एक पे आपको सॉल्व करना था. ओके, ऐसा ही एग्जाम्पल 7 है, लेकिन वहां से कॉपी किया हुआ मुझे मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा. ओके, सॉल्यूशन, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से ये करो, ये देखो और इसके हिसाब से लिखो. ओके, सो एग्जाम्पल 6 and 7 टुडे आई हैव गिवन इन हॉपर. ओके, बस आज हम इतना ही करते हैं. मैं कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका 2 यूज किया, 2 समाप्त करने वाला हूं. एग्जाम्पल 6 and 7. ओके, पहले देख लेना, ठीक से लिख लेना, ट्राई करना. बाद में 6 and 7 कॉपी नहीं करना, खुद करके फोटोग्राफ लेके मुझे भेज देना है. आपको सब पता है, फिर भी मैं बार बार बोलता रहता हूँ. ओके, थैंक यू.